have started types of vector. Once again let me क्योंकि कल नेट बहुत डिस्टर्बेंस था, so types of vector में सबसे पहले we have seen number one null vector. So null vector का हमने दूसरा नाम दिया था zero vector. Null vector are we say zero vector. It is denoted by like this row vector. So I told you a vector whose initial and terminal points are same. Same. That is called its magnitude always zero, but vector we say, that's why row vector, null vector. Okay, this is first definition we have seen, that is null vector or zero vector. Number two, I told you, I hope so, unit vector. So unit vector I told you that is denoted by a cap. अब unit मतलब ये vector whose magnitude is 1, ये vector whose magnitude is 1, that is called unit vector. It is denoted by a cap, that is a vector in the direction of a vector in the direction of a vector is a cap. That is a cap equal to what is the formula? A vector upon magnitude of a vector. So example, let me give you example. So that's why I told you the direction of x-axis I cap का magnitude निकालोगे बेटा, that is equal to under root of 1 का square, that is equal to 1 we will get. तभी तो इसको यूनिट वेक्टर बताया, आई वेक्टर नहीं बोला, आई कैप बोला है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तभी तो आई कैप, जे कैप, के कैप. सो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, दैट इज डिनोटेड बाय, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दैट इज डिनोटेड बाय कैप. सो इन अदरवाइज वी कैन से ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी की डायरेक्शन पे एक वेक्टर में जा रहा तो डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज ए कैप इक्वल टू फॉर्मूला इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. फॉर एग्जांपल वन मार्क क्वेश्चन दे आस्क इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i plus 3j and then plus 4k cap, find the unit vector in the direction of a vector. Find, ये आपका 1 मार्क का 2 मार्क्स में रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है. फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of a vector. So किसी के डायरेक्शन पे ये यूनिट वेक्टर निकालना हो, that is denoted by, I told you, a cap, that is a vector upon magnitude of a vector. A vector you have, that is 2i plus 3j and then plus 4k. Cap, the whole upon magnitude, you know how to find under root of 4 plus 9 plus 16. So that is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. The whole upon 20, 29 under. So if you take magnitude of this, numerator भी आपका under root of 29 आएगा, 29 cancel, okay, you will get 1. So magnitude of a cap always क्या हो जाएगा. So कोई भी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, एनी वेक्टर, आइदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल कैप इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट यूनिट वेक्टर. दैट इज डेफिनेशन. नाउ थर्ड वन, कोइनिशियल वेक्टर. कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? सो ये रहा आपके पास इनिशियल पॉइंट इज 2 और मोर वेक्टर a b c d. सो दिस इज ये रहा बेटा आपके पास वो. सो दिस इज वो इज इनिशियल पॉइंट, वो ये वेक्टर, वो भी वेक्टर. सो ये वेक्टर 2 और मोर वेक्टर्स having same initial point, मतलब डायरेक्शन सेम पे होना चाहिए. सेम इनिशियल पॉइंट is called co-initial vector. 1 मार्क क्वेश्चन में आता है बेटा, is called co-initial vector. Okay. Now next number 4, collinear vector. आपका ऑर्डर वाइज लेकर जाती हूँ. सो सबसे पहले जीरो वेक्टर बताया, then unit vector, co-initial vector, next collinear vector. So what is collinear vector? Collinear vector. 2 or more vectors are collinear, then they are parallel. So what definition is saying collinear? 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line
irrespective of their direction and magnitude. See, two or more vectors are called collinear. Then they must be parallel होना बहुत जरूरी है बेटा collinear के लिए. But irrespective of direction and magnitude. Direction opposite हो सकता है, magnitude अलग हो सकता है, but irrespective of direction, example दूंगी अभी, direction and magnitude. सिंपली ये भी आपका क्वेश्चन आता है बेटा, डायग्राम यूं आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग डिस्टेंस अलग हो सकता है, ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, बट दोनों पैरेलल होना जरूरी है. मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस है, बीच में जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा. सो दैट इज simply if I say I told you I will give you example. If A vector and B vector are collinear, then A vector equal to क्या होना चाहिए बेटा, लैम्डा इंटू बी वेक्टर, where लैम्डा इज स्केलर. नेगेटिव आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन, लैम्डा इज स्केलर होगा. मैंने क्या बताया कि इन केस नेगेटिव हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन और पॉजिटिव हो तो सेम डायरेक्शन पे जाता है. सो कोलिनियर का क्या बताया, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर, देन दे मस्ट बी पैरेलल, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड उसका जो डिस्टेंस अलग हो सकता है, बट दोनों का जो बीच में जो रेशियो वो हमेशा सेम रहना चाहिए. सो दैट इज सेइंग ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर. आई विल गिव यू एग्जांपल. बेटा समझ आ रहा है? हाँ बच्चे, हेलो. यस बेटा, यस, राइट आउट. Done, ma'am. Yes, everybody have done, bete. Bete, everybody have done? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सीधा एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटे, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ साथ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज. So if A vector equal to suppose modulo 2i plus 3j and plus 4k, and B vector equal to 4i plus 6j and then plus 8k. Okay. So if A and B are collinear, collinear मतलब हाँ collinear, then find lambda. So इसी तरह क्वेश्चन आता है बेटे. सो ये वेक्टर ये रहा आपके पास. सो बी वेक्टर को मैं लेती हूँ, आप दोनों का रेशियो देखना होता है. सो बी वेक्टर दे रखा है 4i plus 6j plus 8k. इसमें से मैं 2 बाहर निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 2i plus 3j plus 4k. सो नाउ दैट इज इक्वल टू 2 into we are getting which vector, this is A vector, that is B vector equal to A vector. This implies A vector by B vector equal to क्या आ रहा है आपके पास, that is 1/2. So therefore the ratio lambda equal to, that is A vector equal to, this implies A vector equal to 1/2 into B vector. So where lambda equal to 1/2, or in case if they ask which direction, that is a positive, same direction. In case lambda is positive, then same direction, lambda is negative, then opposite direction. So like this they will ask 1 mark question, otherwise prove that both are collinear they can ask. So what were the question? Now next another definition, let me take 5th one, equal vectors.
सो अभी हमने देखा था कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स क्या होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. बट इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी equal vector, said to be equal vector. Then they have same direction. बेटा डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है. आउट एंड मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, तभी उसको हम इक्वल बोलते हैं. सो बट कोलिनियर के लिए आपका पैरेलल होना जरूरी है. बट यहाँ पे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स, देन दे हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. एंड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड. सो दैट इज कॉल्ड, क्या बताया, इक्वल वेक्टर. नाउ नेक्स्ट नंबर 6, लास्ट वन. सो इक्वल वेक्टर का मतलब आपको पता है. नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, नेगेटिव वेक्टर्स. सो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होगा, negative vectors na, if two vectors are negative, if two vecters a vector and b vector are negative vectors, then they have same magnitude, but opposite direction. That is called negative vector. Equal vector means same direction or same magnitude, but opposite negative vectors means two vectors are said to be negative, then they have same magnitude but opposite in direction. But yesterday I told you one is a triangle law, that is most important law. I don't know whether you have written properly or not. Triangle law already the science students knows about it. So that is A, B and then C. So that's I told you this AC is called a resultant vector क्योंकि A से B पे जा रहा है, B से C पे जा रहा है. So triangle law saying AB vector plus BC vector equal to क्या बताया, AC vector. This AC vector is called resultant vector. AC vector is called, just a minute बेटे, AC vector is called resultant vector. AC vector is called resultant vector. Okay, fine. So इसमें if you are changing the direction, AB vector plus BC vector equal to, if you are changing the direction then automatically negative आ जाएगा. Then we can add it AB vector plus BC vector. This is also one of the result that is equal to 0. ये भी नोट करके रखना. Are you clear, all of you? Yes बच्चे, हेलो, हाँ बेटा, Yes, ma'am. yes, no doubt, Ma'am. yes, no doubt. Then I will give you one more example, then I will start exercise. एक बार आपके सामने go through करूँगी everything whatever I taught. बेटे थोड़ा फास्ट लिख लेना बच्चे.
ma'am. Yes. Next, another formula. Yes, ma'am. Done. Yes, Bute. Next, try to one more formula. Then I will start give one questions. Then one more definition. Then I will start exercise. Vector joining 2 points. Vector joining 2 points. Let A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2. Coordinates given a bit x2 y2 z2 are 2 points. Are any 2 points. Any 2 points. Then ए बी वेक्टर इक्वल टू एक्चुअली क्या करते हैं बेटा सी ये पॉइंट गिवन मतलब अंडरस्टूड है ईच पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन दैट इज व्हाट इज गिवन हियर ओ ए वेक्टर गिवन है बेटा ओ ए वेक्टर मतलब दैट इज x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap and this is OB vector so that's equal to x2 i plus y2 j plus z2 k. Then we need AB vector. So AB vector equal to OB vector that is a terminal minus initial V2. So OB minus that is as per triangular we are doing. We are doing as per triangular. This is O, this is A, this is B. Now O say B, O say A, then A to B. That is OB vector equal to you can write to OA vector and then plus AB vector. Now AB vector equal to OB vector minus OA vector as per triangle law we brought this. I have written here very briefly why we are writing AB vector equal to OB vector minus OA vector. Suppose if 2 points given A vector that is OA point and this is OB vector, then AB vector can be written as OB vector minus OA vector. Why we are writing as per triangular we do? क्योंकि OA given है OB given है, then A से B direction we have taken. So that is like this. From this triangular we are getting this result. So AB vector equal to OB is this. ये रहा x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into plus y2 minus y1 into j cap and then plus z2 minus z1 into k cap. So like this we will find AB vector. So कोई भी vector given हो तो like this you have to write present then AB vector as per triangular OB minus that is terminal minus initial V2 then we will get this one. Are you clear? Suppose if you need magnitude how to find you know about it. Are you clear about it? Are you clear bete? Yes, ma'am. Yes. So still what we have seen what is vector, what is direction cosines, direction ratios क्या होता है और vector given हो यानी vector given हो तो how to find the direction ratio, angle given हो तो direction cosines कैसे निकालना है. उसके बाद हमने देखा types of vector क्या है वो पूरा unit vector कैसे निकालना होता है. That's we have seen all the definition. अब ये क्वेश्चन करा कि one more definition दे देती हूँ पहले ये लिखो then I will start one question. बेटे डोंट थिंक एवरीथिंग हैव रिटन इन योर बुक. मैं तो अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ. सो बी अलर्ट प्रॉपर तरीका से लिख के रखना. Have you written? Yes, Betty. If you have written, tell me. Yes, ma'am. Yes. Now next बेटे राइट एक क्वेश्चन कराती हूँ उसके बाद एक डेफिनेशन मीन्स फॉर्मूला रहेगा इंटरनल सेक्शन एक्सटर्नल डिवीजन वो फॉर्मूला दे देती हूँ देन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं स्मूथली. नाउ सपोज एक नोट एक क्वेश्चन दे देती हूँ. If A is 2, 3, 1 and B this is 1 bit and B point is given 4, 5, 2. Okay. So now find number 1.
नंबर 1 मैम स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही है। हाँ बेटा बोर्ड ब्लर हो रहा है। यस अभी 2 मिनट रुको, अभी अपने आप सही हो जाएगा। मे बी नेट प्रॉब्लम आगे स्टार्ट। यस अभी देखते हैं, अब देखना बेटा आप। यस बेटे हाँ मैम अब ठीक है मैम। ठीक है। फाइंड ए बी वेक्टर। नंबर 2 फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, ये पूरा 2 मार्क क्वेश्चन है बेटा, सारे एक ही क्वेश्चन में दे रही हूँ। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स एंड देन नंबर 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। नंबर 4 फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंड unit vector in the direction of AB vector। so 4 पार्ट है इसमें, एक पार्ट 2 मार्क क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले व्हाट इज गिवन, वो ये वेक्टर गिवन है बेटा, प्रॉपर तरीका से कर लेना, जल्दीबाजी मत करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो 2i + 3j + k cap and OB vector given आपके पास, that is 4i + 5j + 2k। now first part they are asking AB vector equal to, right now I told you terminal minus initial। now that is OB vector ये रहा, वो ये वेक्टर ये रहा। so 4 - 2 into I cap plus 5 - 3 into j cap plus 2 - 1 into k cap। now मतलब this minus this कर लिए, so that is equal to 2i + 2j and then plus k। so you are getting this is AB vector। okay fine। now part number 2 they are asking scalar and vector components। scalar components, so और भी एक कर देती हूँ, स्केलर कंपोनेंट्स के बाद ही एक और पार्ट ऐड करो, मैग्नीट्यूड निकाल दिए। मैग्नीट्यूड के बाद ये 5th पार्ट रखना बेटा, इसका डायरेक्शन रेशियोस एंड कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, डायरेक्शन कोसाइंस सारे निकाल देती हूँ। स्केलर कंपोनेंट्स आई टोल्ड यू, स्केलर कंपोनेंट्स होता है जो भी है दैट इज 2, 2, 1, कोई कॉम्पोनेंट्स वही स्केलर कंपोनेंट्स एज इट इज लिखते हैं। और वेक्टर कंपोनेंट्स होगा, वेक्टर कंपोनेंट्स दैट इज 2i cap, 2j cap, k cap, ये वेक्टर कंपोनेंट्स होगा। and then third part they are asking magnitude of AB vector, under root of इसका magnitude, coefficient of that is 2 square plus 2 square plus 1 square, that is 4 plus 4 8 plus 1 9, so that is 3। AB आ गया आपके पास, magnitude of AB is 3। now fourth one direction cosines we required, so L equal to formula आपको बताया, so that is coefficient of I, that is 2 upon magnitude of AB vector, and M equal to coefficient of J, that is 2 upon magnitude of AB vector, and L equal to 1 upon magnitude of AB vector। magnitude we have already 3, so direction cosines are आपके पास आ जाएगा 2 upon 3, 2 upon 3, 1 upon 3। so this is direction cosines। okay fine। now next find the unit vector in the direction of AB vector। I told you किसी की डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर निकालना, that is AB whole cap, that is equal to formula क्या बताया बच्चे, AB vector upon magnitude of AB vector। AB vector you have already, so that is 2i plus 2j plus k, the whole upon under root of, already we have this one, that is 9 आ जाएगा, so that is AB whole cap, that is equal to 2i plus 2j and then plus k, the whole upon 3। like this आपका 2 मार्क क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट आता है। are you clear about it? yes बेटे, yes ma'am। yes ma'am। yes, write down fast, one more formula I will give you, then I will start the exercise।
डन मैम। यस यस बेटे, पहले एक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट टेक अनदर फॉर्मूला. इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला इज देयर. लेट अस सी. बेटे 10.1 निकालो बच्चे, पेज नंबर 428, 10.1. सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, आपने आंसर बताना है ईच क्वेश्चन का. ओके, सो प्लीज़ एवरीबडी गिव आंसर. ऐसे एक ही बच्चा आंसर ना दे. ना पहला देखना बेटा, रिप्रेजेंट ग्राफिकली. ये 2 मार्क क्वेश्चन है. ये पहला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. सो आपको पता है दिस इज ये कौन सा है, ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ. सही है, डायरेक्शन सही है. ओके, नाउ देखना बेटा क्या दे रखा है. रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब कहाँ से कहाँ पे डायरेक्शन दिखाओगे बेटे. ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब कहाँ से डायरेक्शन कहाँ पे दिखाओगे. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. वेल डन बेटा. ना वो एरो मार्क से ही पता चलेगा बच्चे. ये तो 40 किलोमीटर है, ये एरो मार्क यूं ना, ये जो सिर्फ ये जो एरो मार्क है ना, वही आपका आंसर है. सो दिस इज दे नाउ गिवन 30 डिग्री. सो दैट इज बस ग्राफिकली हो चुका है, वही मेन आपका एरो मार्क हो गया और डिग्री आप मेंशन कर दो. ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब आप लोग आंसर बताओगे बच्चे. क्लासीफाई दी फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर कौन सा होता है. स्केलर मतलब सिंपली कांस्टेंट. वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी आता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर. यू नो अबाउट इट. मेनली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, प्लीज़ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स को थोड़ा तो पता है. सो आप आंसर दोगे, इसका मतलब आपको समझ आए. नाउ एनी हाउ, सो पहला है 10 kg. इज अ स्केलर और वेक्टर बेटे. 10 kg. यस बेटे, बेटे 10 kg स्केलर और वेक्टर. स्केलर. Scalar. Yes, exactly, scalar. Weighting. Scalar. Yes. Now, second part. 2 meters northwest. Northwest. Vector. Vector. Of course, direction given. Direction. Yes, yes. Our third one, 40 degree. 40 degree. Scalar. Scalar. Exactly. टेम्परेचर का सिंबल होता है ना, ये तो आपका वो भी होता है. अब वैसे एंगल भी 1 डिग्री हम बोलते हैं. सो एनी हाउ इट इज अ कांस्टेंट स्केलर. 40 वॉट. वॉट किसका यूनिट है बेटे. साइंस स्टूडेंट्स. पावर. हाँ बेटा. पावर. पावर. सो इज इट स्केलर और वेक्टर. स्केलर. स्केलर. एग्जैक्टली, वेल डन. 10⁻⁻19 कूलम. कूलम किसका यूनिट है बेटा. चार्ज. 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 चार्ज का. सो इज इट स्केलर और वेक्टर. Yes. Scalar. वेक्टर है मैम. Yes. Next. स्केलर. Yes, scalar. ओके मैम. यस मैम. Then 20 meter per second square. Meter per second square किसका वेक्टर. नहीं, किसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. साइंस स्टूडेंट्स को एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. एग्जैक्टली. मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है. एग्जैक्टली. इज इट स्केलर और वेक्टर. मैम वेक्टर मैम. वेक्टर. वेल डन बेटा. क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स. टाइम पीरियड थोड़ा फास्ट बता दे बच्चे, टाइम हो रहा है. टाइम पीरियड बेटा. व्हाट हैपेंड. टाइम पीरियड. मैम स्केलर होगा मैम. हाँ बेटा. मैम टाइम पीरियड तो स्केलर होगा. यस एग्जैक्टली, वेल डन. डिस्टेंस. स्केलर. स्केलर. ये सभी इन्वॉल्व हो जाओ बेटे. फोर्स. फोर्स. वेक्टर. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. साइंस स्टूडेंट्स बात करो. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. मास बाय एक्सेलरेशन. दैट इज डॉट प्रोडक्ट. m by. डॉट प्रोडक्ट निकालते हो. डॉट प्रोडक्ट निकालते हो बेटे. यस. फोर्स कैसे निकालते हो. डॉट प्रोडक्ट से निकालते हो. डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर और वेक्टर. यस बच्चे. मैम स्केलर मैम. डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है मैम. स्केलर. फोर्स इज ए स्केलर. ओके. वेलोसिटी. और मैम वेक्टर मैम. वेक्टर. वेलोसिटी होता है डायरेक्शन के साथ. सो दैट इज वेक्टर. यस मैम. डन.
वर्क डन मैम स्केलर वेक्टर वर्क डन क्या होता है बेटा Vector. इसका फॉर्मूला फोर्स होता है एफ डॉट हैज सॉरी डिस्प्लेसमेंट डॉट समथिंग करते हैं दैट्स वी विल सी वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज एनी हाउ वेक्टर ओके आई होप सो ओके मैम आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग वेक्टर्स नाउ फोर्थ वन को इनिशियल बच्चे सामने एक स्क्वायर शेप दे रखा है देखना उसमें को इनिशियल का मतलब क्या है इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए यही बताया ना बेटे सो बोलो कौन सा कोई इनिशियल है थोड़ा फास्ट बताना डायरेक्शन देखना बेटा एंडिंग में एरो मार्क दे रखा है सो कौन सा कोई इनिशियल है इनिशियल सेम होना चाहिए बोलो बेटे बुक रखा होता इमीडिएट बताओगे आप बुक रखा होगा पक्का आंसर दोगे मुझे पता है हाँ बेटे हाँ कौन सा वेक्टर बी वेक्टर एंड बेटे बी वेक्टर A vector and D vector. ए वेक्टर एंड डी वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बेटा डायरेक्शन नहीं देखनी है इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से जा रहा है समझ आ रहा है बात कोई इनिशियल का मतलब इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए सो दैट इज ए वेक्टर एंड डी वेक्टर ओके इक्वल वेक्टर का मतलब क्या बताया डायरेक्शन भी होना चाहिए सेम मैग्नीट्यूड उसका जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए कौन सा है बोलो बेटे जल्दी बोलो डायरेक्शन सेम होना चाहिए डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए B vector and ma'am D vector. हाँ एग्जैक्टली अब आंसर सही है बी एंड डी यस नाउ नेक्स्ट कोलिनियर बट नॉट इक्वल बेटे कोलिनियर का मतलब क्या बताया मैंने पैरेलल इर्रेस्पेक्टिव डायरेक्शन हो सकता है और इर्रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड हो सकता है बट पैरेलल होना जरूरी है सो कौन सा है कोलिनियर ये बताओ बोलो बेटे ए एंड सी ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन पर दे आर क्या है पैरेलल ठीक है ना इवन दिस बी और डी भी आएगा सेम डायरेक्शन है इक्वल वेक्टर ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर होता है बच्चे ये बात को ध्यान रख लेना ठीक है चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर नेगेटिव वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर इज इट ट्रू और फॉल्स बेटे आंसर दो यार यस मैम yes now second part two collinear vectors are always equal magnitude Yes ma'am. बेटे मैंने कब बोला मैंने मैम फॉल्स होना चाहिए मैम हाँ तो कोई जरूरी नहीं है कोलिनियर पैरेलल होना चाहिए मतलब रेशियो सेम हो सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यही तो बताया मैंने आपको ठीक है Yes, ma'am. हमेशा Yes, ma'am. इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड होगा इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्लियर बोलो Yes ma'am. yes now third part देखना बेटा two vectors having same magnitude are collinear फॉल्स False. सपोज बच्चे सेम मैग्नीट्यूड हो कोई जरूरी नहीं है उसका रेशियो सेम आएगा बेटा मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है वो रेशियो सेम आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल भी आप खुद भी देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। मैम ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल वेक्टर कब बोलते हो? बट कोलिनियर का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो हो सकता है बेटा, बट इक्वल का मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे द टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड उसका सेम है, बट डायरेक्शन तो डिफरेंट हो सकता है। बेटे बोलो यस मैम। है ना मैग्नीट्यूड, क्योंकि वहां Yes, ma'am, हो सकता है। -1 है, -1 का जब मैग्नीट्यूड स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, सो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। Yes, ma'am. इक्वल के लिए आपको सेम डायरेक्शन होना चाहिए, समझ आए? सो इट इज अ फॉल्स। क्लियर? यस मैम। यस। अब आ जाओ बेटा Okay, ma'am. एक्सरसाइज में। हम टाइम क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे लेकर जाती हूँ। नाउ चलो लेट अस वाइंड अप, देन वी विल सी टुमारो one section formula, then we will start take exercise, another exercise. Okay बेटे? Okay? ओके मैम। Thank you. Okay, ma'am. हाँ
Thank you, ma'am. Prepare everybody. Okay. Bye. Bye, ma'am. Hmm.